یوم شہداء اور شیخ محمد عبداللہ کی چھٹی سرکاری گیزٹ سے منسوخ کرنے کے بعد اب سرکار نے ہری سنگھ کے جنم دن پر چھٹی منانے سے متعلق کمیٹی دی تشکیل 4 ممبران پر مشتمل کمیٹی کے رپورٹ کے بعد ہی لیا جائے گا حتمی فیصلہ۔ میڈیکل کالج سری نگر کی سرمائی چھٹیاں منسوخی کے فیصلے کے بعد اب سکمز نے بھی فیکلٹی کی چھٹیاں منسوخ کرنے کا آرڈر کیا جاری۔ چھٹی پر گئے ڈاکٹر صاحبان کو فوراً ڈیوٹیوں پر حاضر رہنے کا حکم۔ جی ایم سی سری نگر نے ایم بی بی ایس اور بی ایس سی پیرامیڈیکل تھیوری کلاسز کو بھی منسوخ کرنے کا حکم نامہ کیا جاری۔ اور سری نگر میں کوچنگ سینٹروں میں آف لائن کلاسز پر پابندی کے بعد پریس کالونی سری نگر میں طلباء و طالبات نے کیا احتجاجی مظاہرہ۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی مراکز میں چھوٹ دینے کا کیا مطالبہ، کہا جب بازار کھلے ہیں جم میں رعایت ہے تو تعلیمی مراکز میں کیوں نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام اسپیشل رپورٹ اپنے میزبان میر ہلال ہانجرے کے ساتھ، اور اسپیشل رپورٹ میں مختلف خبریں آیا چاہتی ہیں۔ جموں کشمیر کے اندر کووڈ کا گراف کس قدر بڑھ رہا ہے، کووڈ کی صورتحال کیا ہے اور سرکار کی جانب سے کس طرح کے ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں، اور اس کووڈ سچویشن میں ایک عام انسان کو کس طرح چلنا ہوگا، کس طرح اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھنی ہوگی، اس پر بھی ہم ایکسپرٹس کی رائے آپ تک پہنچائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے سرکار کا حکم نامہ، اور سرکار کی وجہ سے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں شیخ محمد عبداللہ کی چھٹی، ان کے برسی کے حوالے سے جو چھٹی منسوخ کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یوم شہداء یعنی 13 جولائی کی جو چھٹی تھی سال 2019 کے بعد جب سرکاری گیزٹ میں دیکھا گیا تو ان چھٹیوں کو منسوخ کیا گیا تھا۔ لیکن سرکار کا اب نیا حکم نامہ جاری ہوا ہے، اور اس حکم نامے کے تحت ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور یہ مہاراجہ ہری سنگھ کے جنم دن کے حوالے سے کیا مہاراجہ ہری سنگھ کا جنم دن منایا جائے گا، اس حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو مہاراجہ ہری سنگھ کے جنم دن پر چھٹی منانے کو لے کر اپنا فیصلہ دے گی۔ اس 4 نفری کمیٹی کی سربراہی پرنسپل سیکرٹری جی اے ڈی منوج کمار دیویدی کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس سے پہلے 13 جولائی یعنی یوم شہداء کی چھٹی سرکاری گیزٹ سے ہٹائی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی شیخ محمد عبداللہ جو کہ نیشنل کانفرنس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، ان کی چھٹی بھی کیلنڈر سے ہٹائی گئی تھی، اور اب جموں کشمیر کے اندر مہاراجہ ہری سنگھ کی چھٹی منانے کو لے کر اس میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اپنی تجویز دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ دے گی۔ اور اس چھٹی کو منائے نہ منائے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس چھٹی کو لے کر سیاست تیز ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب مہاراجہ ہری سنگھ کی چھٹی منانے کو لے کر یا اس چھٹی کو سرکاری گیزٹ میں شامل کرنے کو لے کر بات کی جا رہی تھی، تو اس وقت بھی ہم نے جموں کشمیر کے اندر اس پر سیاست ہوتے ہوئے دیکھا۔ سنم اعجاز اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ سنم، آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ ایک طرف شیخ محمد عبداللہ کی جو چھٹی تھی اسے منسوخ کیا گیا سال 2019 کے 5 اگست کے فیصلے کے بعد، جب ہم نے جموں کشمیر کا نیا گیزٹ دیکھا سرکاری چھٹیوں کو لے کر جو جی اے ڈی کی جانب سے مشتہر کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ 13 جولائی جو یوم شہداء کے طور پر بھی ہم نے دیکھا کہ برسوں سے یہاں پر منائی جا رہی تھی۔ آج 4 ممبران پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس میں مہاراجہ ہری سنگھ کی چھٹیوں کو لے کر یا اس کی چھٹی منانے کو لے کر فیصلہ اس کمیٹی کو تفویض کیا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پر سیاست تیز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب اس طرح کی چیمگوئیاں ہو رہی تھی، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، تو جموں کشمیر میں اس پہ عمل اور رد عمل کا سلسلہ جاری تھا۔
देखिए हिलाल, हमें एक चीज माननी पड़ेगी, महाराजा हरी सिंह ने जो जम्मू कश्मीर में राज किया वो उसको शख्सी राज कहा जाता है। वो आज के वक्त की जमहूरियत नहीं है और उस शख्सी राज के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर में जो अपराइजिंग जिसका कहा जाता है 1931 शेख महमूद अब्दुल्ला की सरबराही में वो अपराइजिंग जो थी वो उसी शख्सी राज के खिलाफ महाराजा हरी सिंह के खिलाफ थी। और 1947 में जब आजाद हुआ तो उस शख्सी राज से आजादी भी मिली। तो एक तरह से उस जो टेन्यूर है वो पीरियड है उसको कश्मीर में खास तौर पे जम्मू में भी पहले था कि उसको एक तरह से नेगेटिव एरा को तौर पे देखा जाता था। लेकिन 2014 के आसपास से जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में ना सही बल्कि जम्मू से कुछ लोगों ने आवाजें उठाना शुरू की। जब यहाँ पे शेख महमूद अब्दुल्ला का दिन मनाया जाने लगा, जब 14 अगस्त का जो दिन है जिसे कहते हैं कि यौम शौदा का जो दिन है, उस 13 जुलाई का माफ के जुलाई का, तो उस दिन को यहाँ पे जो है शख्सी राज के खिलाफ जो है लड़ाई का या आजादी की लड़ाई का जो शख्सी राज के खिलाफ आया उसके दिन के तौर पर मनाया जाए। तो जम्मू में कुछ आवाजें उठने लगी और यहाँ पे वो जम्मू और कश्मीर का जो डिवाइड था वो वहां पे शुरू होने लगा। पहले आवाजें बहुत छोटी छोटी उठने लगी, गली नुक्कड़ से आवाजें, और उसके बाद उन आवाजों में उस वक्त जोश आना शुरू हो गया जब बीजेपी के कुछ लीडरान और उसके साथ साथ जो कंवर महाराज हैं उनके बेटे बिल्कुल सनम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये शामिल रहे जो उनका जम्मू कश्मीर का यूनिट है कि अब महाराजा हरी सिंह की छुट्टी मनानी चाहिए। लेकिन कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो जम्मू कश्मीर सेंट्रिक बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस है, उनका किस तरह का रिएक्शन इस पर आ सकता है? क्योंकि इससे पहले भी हमने उनका रिएक्शन देखा हुआ है। देखिए पास का रिएक्शन भी हमें मालूम है। उन्होंने कहा था कि हमें शख्सी राज से छुटकारा मिला, हमें मुसीबतों से नजात मिली और ये नजात जो है ये हमें 1947 को 15 अगस्त 1947 को मिली है और वो शख्सी राज जो था वो एक गुलामी का तोप था, तो उससे हमें नजात मिली। तो इसलिए कश्मीर की और जम्मू की भी जो बड़े सेक्युलर माइंड जिन्हें लोग कहते हैं वो पहले भी इसके हक में नहीं थे। लेकिन इस वक्त सरकार जो है सरकार ने अब 4 रुकनी कमेटी बनाई है और उसमें इख्तियार दिया गया है इस कमेटी को कि वो और मेंबर्स को भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो नॉमिनेट कर सकती है। तो अब देखना ये है कि ये कमेटी जो है ये रिपोर्ट क्या करती है, क्या यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेगी, उनसे सलाह मशवरा करेगी, उसके बाद इसमें कोई फैसला लेगी या ये कोई ऐसा ही फैसला लेगी, यानी 4 रुकनी कमेटी जिसमें सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज बैठे हैं वो लेगी, वो बैठेंगे तो वो फैसला लेंगे। अभी देखना हमें इंतजार उसका करना है। अगर उनका ये इसमें आ गया यानी छुट्टी अगर वो दे ही देते हैं महाराजा हरी सिंह के जन्मदिन की, तो फिर सवाल उठेंगे पॉलिटिकल पार्टीज जो है सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू की और कश्मीर की, जिन्हें हम कहा जाता है कि कश्मीर की लगभग सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो चाहे किस भी थॉट से हों एक्सेप्ट बीजेपी, यहाँ पे इस पे सवाल है, इस पे उठेंगे और मौका मिलेगा तनकीद का। बड़ी तनकीद हो सकती है गवर्नमेंट, चलिए बड़ी तनकीद हो सकती है। सनम एजाज का ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम इस हवाले से अपना नुक्ते नजर रखने के लिए, क्योंकि अब चूंकि ये कमेटी बन चुकी है, इसकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी, इनके फैसले जात क्या होंगे, वो आने वाले वक्त में ही देखा जा सकता है। लेकिन तब तक सियासत किस करवट बैठती है, किस तरह के सियासी रद्दअमल आते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। चलना अगली खबर में हम बात करते हैं सिक्किम की, क्योंकि इससे पहले जो विंटर वेकेशंस थी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने अनाउंस की थी और उसके बाद उन्होंने उस ऑर्डर को मनसूख किया कल की डेट में, और सभी डॉक्टर साहिबान को हिदायत दी गई थी कि वो आज हाजिर हो जाएं। लेकिन वहीं पर अब सिक्किम की जानिब से भी एक ऑर्डर जारी किया जा चुका है और इस ऑर्डर में यही कहा गया है कि जितने भी डॉक्टर साहिबान सरमाई छुट्टियों पर गए हुए हैं वो जो है वो इन छुट्टियों को मनसूख करे और वापस आ जाए ड्यूटियों पर। ये सिक्किम की जानिब से यह ऑर्डर जारी हुआ है और इस तरह से पहले मेडिकल कॉलेज और उसके बाद शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा की जानिब से भी इस तरह की छुट्टियों को मनसूख करने का ऑर्डर जारी हो चुका है। यानी ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर में बाकायदा तौर पर उन डॉक्टर साहिबान से कहा गया है कि वो फौरन से पेशतर अपनी ड्यूटियों पर हाजिर हो जाए, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के बढ़ते खदशात के बीच ही इस ऑर्डर को जारी किया जा चुका है। एक बड़ी खबर जो सिक्किम की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें डॉक्टर साहिबान की छुट्टियों को मनसूख किया गया है और ये सब कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोविड के बढ़ते मामलात है या बढ़ते खदशात है उसके पस मंजर में लिया गया। न सिर्फ इतना बल्कि अगली खबर में अगला ऑर्डर हम आपको दिखाएंगे, ये श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का है और इस श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के इस ऑर्डर में कहा गया है कि जितने भी MBBS जो कोर्सेज हैं और उसमें जो थ्योरी
थ्योरी क्लासेस हैं, न सिर्फ MBBS बल्कि जितने भी BSc पैरामेडिकल कोर्सेज है उसमें थ्योरी क्लासेस को भी फिलहाल सस्पेंड किया जा चुका है। ये श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की जानब से ऑर्डर जारी हुआ है और ये ऑर्डर्स आज पे दर पे निकल रहे हैं इस वजह से कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड के मामला काफी बढ़ रहे हैं। चले नाज़रीन, बात कोविड की कर रहे हैं क्योंकि कोविड जहां मुल्की स्तर पर हम देखते हैं तो पिछले 24 घंटों के दौरान 1,68,000 केसेस पूरे मुल्क के अंदर पॉजिटिव आए हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर अगरचे ये लहर अभी कम ही है लेकिन रोज बरोज इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और 706 केसेस कल के डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर पॉजिटिव पाए गए हैं और अगर एक डेढ़ हफ्ता पहले ही देखेंगे तो ये केसेस तकरीबन 2 डिजिट में ही आते थे लेकिन अब इसमें भी काफी इजाफा हो रहा है और इन इजाफियों के दौरान हम उन गाइडलाइंस पर भी बात करेंगे जो ICMR की जानिब से जारी की गई हैं हालिया दिनों और जिसमें कहा गया है कि जो भी कोई शख्स पॉजिटिव हो जाता है और उसके बाद जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उस पर कहीं ना कहीं उन्हें जरूरत नहीं समझी है और यही कहा गया है कि जिस शख्स में अलामत पाए जाए हों और उसके साथ साथ जिस शख्स में अंडरलाइन कोई बीमारी हो तो उन्हीं को टेस्ट करने के लिए जाना जरूरी है और अगर कोई पॉजिटिव होगा भी तो उन्हें अगर कोई सिम्टम नहीं है तो फिर उन्हें टेस्टिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है। एक बड़े इदारे ICMR की जानिब से इस तरह की नई गाइडलाइंस को जारी किया जा चुका है लेकिन जम्मू कश्मीर के विजाविज जब हम देखते हैं हम भी अपने एक्सपर्ट्स के साथ इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर निसारुल हसन जो डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट है और असिस्टेंट प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर, उनसे भी हम ये तजवीज जानने की कोशिश करेंगे कि ICMR की जानिब से जो एक नई गाइडलाइंस दी गई हैं इसे आप किस नजर से देखते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए कोविड के फैलाव को रोकने में मदद मिलती थी तो क्या वजूहात होंगी कि इन गाइडलाइंस को जारी किया जा चुका है। डॉक्टर निसारुल हसन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किन वजूहात की बिना पर आज इन गाइडलाइंस के अंदर तब्दीली लाई गई है और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थी उससे कहीं ना कहीं मदद मिलती थी कोविड के फैलाव को रोकने में, तो आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? देखो 90 जो पैंडेमिक है या जो थर्ड वेव की जो आमद आ गई जो मुल्क भर में है अब यहाँ पे भी देखी जा रही है, कश्मीर के हवाले से भी केसेस में तेजी से इजाफा होता है। वैक्सीनेशन के अलावा टेस्टिंग जो थी, टेस्टिंग इज द कॉर्नर स्टोन। यू हैव टू टेस्ट पीपल, यू हैव टू ट्रेस पीपल, यू हैव टू डू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ये सबसे बड़ा जो है कि टेस्टिंग के हवाले से ट्रेसिंग करनी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनको आइसोलेट करना होता है। सपोज अगर आपको मैं एक एग्जाम सिंप्लीफाई करके अगर आप को कोई पॉजिटिव केस आता है तो फिर उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते थे उनको हम ट्रेस करके उनका टेस्टिंग करते थे, उसके बाद टेस्टिंग करके अगर उनमें सिम्टम्स ना भी पाए जाते थे उनको आइसोलेट करते थे। लेकिन दिस ICMR गाइडलाइंस इज सरप्राइजिंग टू मेनी एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग मी कि अगर आपको इस थर्ड कोविड वेव या ओमिक्रॉन जो के हवाले से जो ओमिक्रॉन से ट्रिगर हो गई है तो इसको आपको कम्बैट करना है या इसके खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज वेरी मस्ट। अगर सपोज आपका पॉजिटिव केस आता है उनको आप उनके कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, चाहे आप ट्रैवलर्स लेते हो या यहाँ पे घर में अगर कोई पॉजिटिव केस आता है या किसी इंस्टीट्यूशन में पॉजिटिव आता है तो उनके फिर आप भी देखते थे कि वो ट्विटर पे आके बोलते थे कि आप जितने भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट हुए थे उनको चाहिए कि वो आइसोलेट हो जाएं, टेस्ट करें। उसी से अगर आप टेस्ट करोगे उसी से हमको पता चलेगा क्या ये पॉजिटिव है या नहीं। अगर हम टेस्ट ही नहीं करेंगे तो हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे करेंगे? तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज अ मस्ट, चाहे उनमें सिम्टम्स हो या ना हो। लेकिन अगर
ایک پیشنٹ یا ایک پرسن ایسمپٹومیٹک بھی ہوتا ہے وہ بھی یہ کووڈ-19 یا ویریئنٹ پھیلا سکتا ہے. ایویڈنس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے, ڈیٹا کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ پہلے لگتا تھا کہ ایسمپٹومیٹک ول ناٹ اسپریڈ, لیکن اب کلیئر ایویڈنس ہے کہ اگر ایسمپٹومیٹک لوگ بھی ہیں وہ بھی کمیونٹی میں اس کووڈ کو پھیلا سکتے ہیں. اس لیے کانٹیکٹ ٹریسنگ از امپورٹنٹ ویزاوی کمبیٹنگ دا کووڈ-19 پینڈیمک. اس کے بغیر ہم اس کووڈ-19 کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ICMR کو دوسری ہم جو میں نے کلاس اس میں دیکھا کہ پریگننٹ لیڈیز کو آپ مت کرو ٹیسٹنگ. اگر ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے ابھی اومیکرون کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کہ کیا یہ اومیکرون سیویئر ہو سکتا ہے پریگننٹ لیڈیز میں. اگر آپ پریگننٹ لیڈیز میں ٹیسٹ ہی نہیں کرو گے تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ پازیٹیو ہے نہیں. ہم کو یہ بھی کیسے پتا چلے گا کہ یہ وائرس یہ ویریئنٹ کیسے بہیو کرتا ہے ڈفرنٹ سیکشنز آف پاپولیشن میں, چاہے پریگننٹ لیڈیز میں ہے یا بچوں میں ہے. دیکھو اومیکرون کے حوالے سے یہ ماننا ہے کہ موسٹ آف دا پیشنٹس آر ایسمپٹومیٹک, بٹ وی نیڈ ٹو آئسولیٹ دم. آئسولیٹ نہیں کرو گے تو یہ کمیونٹی میں پھیل جائے گا. آئسولیٹ نہیں کرو گے تو بڑھ سکتا ہے, تو یہ ولنریبل لوگوں کو دے سکتا ہے وہی ایسمپٹومیٹک پیشنٹ, اور ان میں یہ جان لیوا ہو سکتا ہے. ولنریبل مینز یہ جو پرسن ہے اگر خود ایسمپٹومیٹک ہوگا, اگر یہ ایلڈرلی میں دے دے گا یہ پیشنٹ, اگر یہ ان لوگوں کو دے گا جن میں انڈر لائنگ میڈیکل کنڈیشن ہے, ان میں یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ICMR کی جو گائیڈ لائنز ہے کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے ان کو ریوائز کرنی ہے اگر ان کو صحیح معنوں میں اس اومیکرون ویریئنٹ کے خلاف لڑائی لڑنی ہے, اور وہ بھی سکسیسفل لڑائی. ڈاکٹر صاحب, چونکہ پورے ملک کے اندر جس طرح سے اب یہ سپریڈ ہوا ہے اور کافی اسپائک آئے ہیں, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1,68,000 کے قریب کل کے دن میں بھی کیسز پازیٹیو پائے گئے ہیں, تو ملک کی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک پیک لیول جو ہے, پیک ٹائم جو ہے ابھی اس کووڈ کا نظر آ رہا ہے. لیکن جموں کشمیر کی وجہ جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 700 کے آس پاس کیسز آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے جب سیکنڈ ویو سے ہم گزرے ہیں تو تب ہم نے دیکھا کہ روزانہ 3,500 تک بھی یہ تعداد جو ہے چلی گئی ہے. تو اس بار کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کب یہ پیک ٹائم کشمیر کے اندر آ سکتا ہے اور کس حد تک یہ لیول بڑھ سکتی ہے؟ دیکھو یہ دو چیزیں میں کہہ سکتا ہوں اس میں. جو یہ آپ کا کیس کاؤنٹ ہے اٹ کین بی این انڈر ایسٹیمیٹ, اور اس سے زیادہ بھی ہمارے اس کشمیر کے حوالے سے کیسز ہو سکتے ہیں, کیونکہ میں نے ہسپتالوں میں دیکھا کہ ان کا CT پیشنٹس جو ایڈمٹ ہوئے ہیں کووڈ سمٹمز لے کے, ان کو ہم RT-PCR کرتے ہیں, ان کو نیگیٹو آتا ہے, لیکن CT جب ان کو کرتے ہیں وہ کووڈ کنسسٹنٹ ہوتا ہے. اسی لیے مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ فالس نیگیٹو بھی اومیکرون کے حوالے سے RT-PCR آتا ہے. یہ جو کیسز ہے مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ کیسز ہے کشمیر کے میں. اب آپ نے بولا کہ پیک کے حوالے سے, دیکھو کشمیر کے حوالے سے ہم نے سیکنڈ ویو میں بھی دیکھا کہ دیٹ وی آر 1 or 2 weeks behind it comes. جو کووڈ سرج آ گیا وہ دلی کے بعد آ گیا, دیٹ از وائی اگر دلی میں پیک جو پریڈکشن ہے پیک کی وہ لگ بھگ جنوری کے اینڈ میں ہے اکارڈنگ ٹو اے ماڈل بائی IIT کانپور, کہ پیک جو ہوگا وہ جنوری میں ہوگا. لیکن کشمیر کے حوالے سے اگر آپ بات کرو گے یہاں پہ پیک کا جو پریڈکشن ہے اٹ ول بی 1 and 2 weeks behind دہلی اور مہاراشٹر. دیٹ مینس یہاں پہ جو ہے ابھی کیسز بڑھ جائیں گے, اس سے زیادہ بڑھیں گے, اور اٹ میں بی اگین لائک سیکنڈ ویو ویزاوی کیسز. دیٹ مینس کہ تھاؤزینڈس آف کیسز ہوں گے اگر ہم ٹیسٹنگ کو ریمپ اپ کریں گے. لیکن پیک جو ہوگا کشمیر کے حوالے سے وہ دلی کے بعد آئے گا. ڈفرنٹ پلیسز ول ہیو ڈفرنٹ ٹائمنگز فار پیک, اور کشمیر میں اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ پیک ول بی ان فیبروری, اور دیٹ مینس تب تک کیسز کی تعداد بڑھ جائے گی. اور جب کیسز کی تعداد بڑھ جائے گی, میں نے ہسپتالوں میں بھی دیکھا ہاسپٹلائزیشنز آلسو ہیو انکریزڈ, دو مارجنلی بٹ دے ہیو آلسو انکریز. میں آج کووڈ ہاسپٹل کنمو میں راؤنڈ کر کے آیا, وہاں پہ لگ بھگ 55 پیشنٹس آلریڈی ایڈمیٹڈ ہے. سم آر ان ICU, سم آر ریکوائرنگ آکسیجن, اور ٹریولرز کے حساب سے 14 people are admitted there. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو کووڈ سرج ہے کمیونٹی میں, ہاسپٹلائزیشنز بھی کشمیر میں انکریز ہو گئی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نثار الحسن ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ڈاکٹر نثار الحسن ڈاکٹر ایسوسیشن کشمیر کے پریزیڈنٹ.
हमारे साथ बात कर रहे थे कि किस तरह का सिनेरियो अभी है और पीक टाइम कब जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली के अंदर कब होगा। और उनका मानना है कि फरवरी के महीने में एक्सपेक्टेड है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पीक टाइम हो सकता है कोविड-19 केसेस के बढ़ते रुझान के पेश नजर, क्योंकि उनका यह भी मानना है कि बाकी स्टेट्स खासतौर पर दिल्ली के मुकाबले में हम 2 हफ्ता बिहाइंड है, 2 हफ्ता पीछे हैं जब ये पीक टाइम आ जाता है। चलिए, अब अगरचे इस तरह के केसेस आ रहे हैं, उसका समाधान क्या है? एक तो अवाम को भी, लोगों को भी इस हवाले से अपने आप SOPs पर अमल करना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद अब अगर खुदा न खास्ता लोग इस पे मुब्तला हो भी जाते हैं, उन्हें कोविड पॉजिटिव हो भी जाते हैं, तो उस सूरत में हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन 2 ही चीजें हैं। लेकिन जिन अशखास में, जिन अफराद में सिम्टम्स पाए जाते हैं और सीवियर सिम्टम्स पाए जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ किया गया है? डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद के साथ आज हमारे लोगों की बात हुई है और उन्होंने कहा कि श्रीनगर में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उन्होंने भी कहा कि हमने फिलवक्त जो ऑक्सीजन प्लांट्स है उनका ऑडिट किया है। न सिर्फ ऑडिट बल्कि उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है और खासतौर पर ये नॉन एसेंशियल व्हीकल्स के लिए है और शाम 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा शहर श्रीनगर के अंदर। और उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके लिए RT-PCR मैंडेटरी किया गया है और जब तक ना उनका रिजल्ट आएगा, उनकी रिपोर्ट आएगी, तब तक वो आइसोलेशन में ही जाते हैं। और उन्होंने कहा कि अभी तक 14 लोग ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं और जिनमें से 6 को इमीडिएटली टेस्ट पॉजिटिव आया है, जबकि बाकी 8 जो है उन्हें दूसरा टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। और उन्होंने कहा कि श्रीनगर के अंदर उन्होंने 20% RT-PCR टेस्टिंग में इंक्रीजिंग की है इस कोविड को मद्देनजर रखते हुए। और उन्होंने कहा कि सेकंड लहर में, यानी सेकंड वेव में सबसे ज्यादा 1300 केसेस श्रीनगर के अंदर आए थे एक दिन में और आज हमने इसके 4 गुना एडवांस इंतजाम किए हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बता दूं कोविड सिचुएशन कैसी है। अगर आप देखें पिछले 5-7 दिन से केसेस में काफी ज्यादा स्पाइक है। पहले जहां हमारे केसेस 30-40s में आ रहे थे, अब वही हमारा अगर देखें हम केसेस 130 में और कल तो 150 क्रॉस हो गया। तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उसके साथ अगला सवाल आपका कुदरती तौर पर यह होगा कि हमें करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, हमारी तैयारियां क्या है। तो मैं ये बताता चलूं कि तैयारियों के सिलसिले में जिस तरीके से हमने सेकंड वेव में काफी सबने मिलकर, पूरी टीम ने और आवाम के ताउन के साथ सेकंड वेव में हमने जो ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था उससे बड़ा स्मूथली हमने उसको टैकल किया और ऑक्सीजन बेड्स सफिशिएंट नंबर में अवेलेबल कराए गए। अभी जो इकदाम उठाए गए हैं उनमें एक तो ऑक्सीजन प्लांट्स का ऑडिट किया गया है, जिसमें तमाम ऑक्सीजन प्लांट्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए पूरा ऑडिट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने किया है। उसके साथ जो गैदरिंग्स हैं उन पर लिमिट 25 की ही रखी गई है। तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर्स को बताया गया है कि ऑफलाइन मोड में काम करें। उसके साथ नाइट कर्फ्यू, जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है ट्रांसपोर्ट की, उसको रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक उसको बंद कर दिया गया है। जितने हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं यहाँ, उनके लिए SOPs इन प्लेस हैं, जिसमें एयरपोर्ट पर मैंडेटरी RT-PCR टेस्टिंग होती है और जब तक RT-PCR का रिजल्ट नहीं आता उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। आज तक टोटल तालीम जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं, ये डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का मानना है। लेकिन तालीम को लेकर ही आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर तलबा व तालिबात ने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि साल 2016 से ही अलग अलग मसाइल से उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। मुहज्जिब समाज और ममालिक तालीम को तरजीह देते हैं, ये बच्चों का मानना है। और बच्चों का यह भी कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि कोचिंग सेंटर्स या तालीमी इदारे बंद हो जाए। बच्चों का यह भी कहना है कि तालीमी मराकज के सिवा बाकी सभी इदारों को छूट दी गई है, जबकि सिर्फ तालीमी इदारों खासकर तालीमी सेंटरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है ऑफलाइन क्लासेस पर। इसके अलावा उनका यह भी कहना है और उनका यह मानना है कि एग्जाम के मौके पर
पेरेंट्स की कंसेंट को लेकर ऑफलाइन इम्तिहान देने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। यानी उनका कहना है कि जब उन्होंने पढ़ाई नहीं और पढ़ाई उन्हें ऑनलाइन करने के लिए कहा जा रहा है तो फिर एग्जाम ऑफलाइन क्यों लिए जाते हैं, ये बच्चों का सवाल है। अगर हमारा एजुकेशन, अगर यहाँ पे कुछ भी बंद नहीं हुआ, कुछ सफर नहीं हो रहा है, जिम सफर नहीं हो रहा है, अल्कोहल शॉप सफर नहीं हो रहा है, तो हमारा एजुकेशन क्यों सफर हो रहा है? हमारा अगर इन्होंने बोला कि 20 to 15 डेज लगेंगे हमें, तो उतना ही टाइम पिछले साल भी इन्होंने सेम वही बोला। पूरा साल हम यही सुनते आ रहे थे कि 20 डेज 15 डेज 20 डेज 15 डेज। हम नहीं ये सब कुछ चाहते, और अगर बंद करना है तो सब कुछ बंद करो। कश्मीर में एक भी इंसान नहीं दिखाई देना चाहिए चलता हुआ। फिर ने प्रॉमिस किया हमें कि आप लोग वैक्सीन करो, टीचर स्टाफ जो है वो फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, तो हमने वो मान लिया। हमने खुद भी वैक्सीन किया, टीचर्स ने भी वैक्सीन किया, लेकिन उसके बाद भी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग ट्यूशंस बंद करो, सारे ट्यूशंस बंद करो वगैरह। क्यों करेंगे? हमारा फ्यूचर क्यों ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं? 2022 हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये वाला साल भी ये लोग डिस्टर्ब करे हमारा। पहली बात है, अगर जो एक सिविलाइज। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।